In an industry which sees new budding talent every day, Shahid and Shraddha was spotted encouraging such talent at a reality show finale. जी हाँ, श्रद्धा और शाहिद कपूर पहुंचे एक ऐसे रियलिटी शो के फिनाले पर जिसके जजेस हैं अनुराग बासु, सोनाली बेंद्रे एंड धूम 3 डायरेक्टर विक्टर। और इस फिनाले के स्पेशल जज बने महेश भट्ट, who promises to launch the winners of the show. And the judges of the show are surely happy about Mahesh Bhatt mentoring their babies. When you are not in Bombay and you are in a small town and you have aspirations to become an actor, आपको रास्ता नहीं पता होता और ये एक रास्ता है through auditions. So I think बहुत सारे लोगों का सपना, और who better than Bhatt साहब? And I think he's the best person in this industry to mentor somebody, launch somebody, and because he knows the strength of the actor. He can only मतलब वही जो है और क्या अभी तक ये जो है ना हम लोग हथेली में लेके घूम रहे थे इन सबको, अभी ये छोड़ देंगे तो भट्ट साहब इज अ ग्रेट लाइफ जैकेट फॉर देम, दे विल नॉट सिंक इन द ओशन। Well, we are sure they are in good hands. लेकिन अब नजर डालिए यहाँ आए शाहिद कपूर पर, जो आए हैं अपने गले में फंदा डालकर। Now what's that, शाहिद? जी ये हैदर की टाई है। हैदर अगले कुछ दिनों के लिए अपनी टाई पहनकर घूमेगा और इस टाई के साथ वो माइक को भी यूज़ कर सकता है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए, हैदर की बात हो रही है तो ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगा अबाउट दिस फिल्म? मेरे और हैदर के अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है और यही सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी इस रोल के बारे में कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शाहिद जैसी है। इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। और विशाल साहब हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो अमूमन आपको ऐसे रोल्स देते हैं जो, जैसे कमीने में भी जब उन्होंने मुझे चार्ली और गुड्डू का रोल दिया था तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊँगा। इस बार भी मुझे ऐसे लगा कि यार मुझसे होगा नहीं होगा। But that's what makes it exciting also. Talking about कमीने, तो शाहिद ये पूछना तो बनता ही है कि आजकल मीडिया में फैली है ये खबर that कमीने sequel is in the pipeline. Now, how true is that, शाहिद? I've been sending news to media houses, so he gets pressured to make it. I'd be very happy if Kameene 2 happens. I have had an amazing experience working with Vishal sir on Kameene and now even more on Haider. I just hope he casts me in his next film. And I hope that film is coming. Yeah, he has an amazing story also. So I think everybody should tell him to make this film because he's difficult to convince. But he has a story also, and he has an amazing idea also, and he has a romantic version of Dhentedan also. So I've been telling him that he should do it. But you know how he's a filmmaker and he has his own thoughts. So लगता है शाहिद काफी ट्राई कर रहे हैं टू कन्विंस विशाल। लेकिन बात अगर इस इवेंट की करें तो यहाँ शाहिद आए हैं न्यू टैलेंट को सपोर्ट करने। सो डज ही टेक देम एज अ थ्रेट? वेल, जैसे ही मीडिया ने ये सवाल किया, शाहिद को लगता है अपनी सीनियरिटी याद आ गई। No, yeah, I don't look at it. I think maybe people who've debuted 1-2 years back, you should ask them this question. I've been here for 10 years, so I don't feel like there'll be competition. In fact, it's nice to encourage talent when they come in, and I'm looking forward to see the different kinds of performances that will be shown out here. And it's the finale, so I understand it's a big moment for all the contestants. And I'm here to cheer them and support them. Okay, शाहिद, we get the point. लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं ना कि अगर आपको भी रियलिटी शो के थ्रू अपना करियर बनाना होता तो क्या आप ये पाथ चूज करते? These reality shows are amazing. The whole country gets to vote for actors. When I was giving auditions, it used to be in a closed room. 3 people used to be sitting there who used to have 150 people to choose from, and you were not even given a proper opportunity to kind of show what you can do. So there was no real platform to be able to show your talent when I started out. शाहिद के बाद अब बारी है श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा यहाँ दिखी इन अ प्रिंटेड नी लेंथ ड्रेस, हेयर नीटली टाइड अप। शी लुक्ड सुपर अडोरेबल और उनके लुक से ज्यादा अडोरेबल थे उनके ये कैंडिड स्टेटमेंट्स। श्रद्धा से भी हमने यही सवाल किया कि इफ नॉट फ्रॉम अ फिल्मी फैमिली वुड शी ऑप्ट फॉर अ प्लेटफॉर्म लाइक अ रियलिटी शो? मुझे तो बचपन से एक एक्टर बनना था और मेरे डैड की वजह से, क्योंकि उस माहौल में पली बड़ी हूँ तो नेचुरली उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी कैमरा के सामने होना है। बहुत ही एक्साइटिंग प्रोफेशन है एंड डेफिनेटली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए। ऐसे लोगों को लगता है कि मैं शक्ति कपूर की बेटी हूँ तो मतलब मुझे ऑडिशंस देने नहीं पड़े। ये बहुत गलत खबर है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और मुझे सिलेक्ट भी किया गया था कुछ फिल्मों के लिए। फिर उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया तो डेफिनेटली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रही है। लेकिन इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम और अगर आप उसमें बहुत विश्वास रखते हो
then you should just go for it without any barriers and any borders and just follow your heart. तो चलिए श्रद्धा, आपने ऑडिशंस की बात छेड़ ही दी है, तो ये भी बता दीजिए आपका मोस्ट सक्सेसफुल ऑडिशन कौन सा रहा? मेरा पहला ऑडिशन था तीन पत्ती के लिए, जो मेरी पहली फिल्म थी, और मुझे पहले ही ऑडिशन में बहुत सक्सेसफुल ऑडिशन रहा वो, क्योंकि मुझे फिल्म मिल गई। पर उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए, तो कोई फिल्में मुझे मिली, कोई फिल्में नहीं मिली, कोई मिली फिर हाथ से निकल गई। तो ऑडिशंस के काफ़ी सारे चक्कर हुए हैं मेरे। And now that you're a successful actress, आप इन न्यू टैलेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? आई थिंक कि एक जो यूनिकनेस की बात होती है, आई गेस वो बात सब में है, और लोग काफ़ी टेम्प्टेड हो जाते कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रही है, मैं भी ऐसे करूँ। तो मैं कहूँगी कि एक यूनिकनेस अपनी रखो, एंड दैट्स हाउ यू विल बी सक्सेसफुल, बाय बीइंग योरसेल्फ। तो कुछ इस तरह इन स्टार्स के एनकरेजमेंट और महेश भट्ट के गाइडेंस से पूरा हुआ ग्रैंड फिनाले। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम मुंबई।